Hence, this is the second part of art and culture and the last part of art and culture video. Here we will see all the important things. एक ग्लांस ले लेते हैं, ठीक है। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में बहुत डीप नहीं गया अभी तक, ठीक है। और बहुत डीप अगर ऑप्शन डाले भी हैं तो इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा पता है, एलिमिनेशन लॉजिक लगा के आंसर यू विल अराइव, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं। ये देखो, पल्लवाज हैज़ मेड दिस द्रविडियन आर्किटेक्चर को प्राइम पे ले गए। पल्लवा 7th सेंचुरी के आसपास के थे, ठीक है। नरसिंहवर्मन 2 है जहाँ से एक्चुअल टेम्पल शुरू हुआ, और फिर चोला से द गोपुरम, ये सब चीज़ें दे बिकेम मोर ग्रैंड, ठीक है। बहुत हाइट चला गया, विमान का हाइट 66 मीटर तक चला गया। अब कुछ फेमस टेम्पल्स देख लेते हैं, जैसे सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। सो ये लेट 7th सेंचुरी में बना गया ड्यूरिंग नरसिंहवर्मन 2, ठीक है। टाइम पीरियड इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है। धर्मराज रथा और ये सब जो है ना, रथा में डिवाइड करना, दिस ऑल स्टार्टेड हियर, ओके। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, यू कैन सी दिस, ओके। There were like different phases, not that important for prelims. Veshara style. So in what is Veshara style? So it, first of all, it emerged during early medieval period, and two styles were merged: Nagara and Dravida both. Temples built in Deccan under later Chalukyas of Kalyani and Hoysala are considered example of this, ठीक है। इसमें the height of temple जो था वो रिड्यूस हो गया था, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट चैत्यास में यू विल सी सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट वाज आल्सो बोरोड। एंड एग्जांपल्स आर हेलेबिदो is a place where there is a temple known as Hoysaleshwar. Then there is a Kailasnath temple at Ellora, Ladakhan temple at Aihole, Karnataka. So these all are part of Vesara style. 10 temples at Pattadakkal, Karnataka is a very famous and very important because it is a UNESCO World Heritage Site. First half of 8th century में this was built. There are 10 temples, 4 are of Dravida style, 4 are in Nagara style, and 1 is a Jain temple. While the Papanath temple is built in fusion of both Nagara and Dravida style. So if they will tell you that all 10 temples are built in Dravida, wrong. All 10 temples are built in Nagara style, wrong, ठीक है। तो you have to remember this is a trap. Great Virupaksha temple dedicated to Shiva as Lokeshwara by the Queen of Vikramaditya II, datable to 740 AD. Vikramaditya is a title, don't get confused, okay। So many kings have used it, and most probably it was brought through some workmen coming from Kanchipuram. So because there is a direct imitation of Kailasnath temple of Kanchipuram in Great Virupaksha temple. In Pattadakkal, this temple is only still in use. Then there is a Ravan Phadi cave at Aihole, is an example of the early Chalukyan style, which is known for its distinct sculptural style, ठीक है। Most important sculpture is Nataraj. And there is a large depiction. There are Sapta Matrika, 3 to Shivalak, 4 to his right. So you have to just remember that in Ravan Phadi cave we will find a sculpture of Nataraj. Ardhanarishwar Shiva can be also seen. Carved image of Shakti Durga and Mahishasur Mardini. ठीक है, you know ना, Shiva and Shivi together is known as Ardhanarishwar. And Huchapaya Matha temple. Uchapaya Matha temple is also part of temples of Aihole. Then there is Brihadeshwara temple, which is a very famous temple. Okay, Raja Rajeshwaram, dedicated to Shiva in Tanjore, Tamil Nadu. It is called as Dakshina Meru, Meru of South, built by Raja Raja Chola I. Raja Raja Chola I, time period 1003 to 1010 AD. It is also part of UNESCO list as Great Living Chola Temples, Brihadeshwara Temple, along with the Chola Dynasty era Gangaikund Cholpuram Temple and Airaviteshwara Temple that are about 70 kilometers far. It is built out of granite. The Vimana Tower above the sanctum is one of the tallest in southern India. Come to the cave architecture, Bhimbetka caves.
ठीक है. It ranges. You can find some of the paintings from Paleolithic, some from the Mesolithic. So for a long time period, you can find the use of Bhimbhatka cave for making paintings, arts and architecture, etc. It is a UNESCO World Heritage Site. Okay, so you can see that paintings discovered in the rock centers have striking resemblance to those discovered in Australia's Kakadu National Park. This is an important point. As well as to Bushman cave painting in the Kalahari Desert and Upper Paleolithic Lascaux cave painting in France. This indicates some kind of relationship with these places. This is also called as the Zoo Rock. It depicts elephant, bison, deer, sambar, and V.S. Wakankar has found this grand Bhimbetka rock structure. Then there is Ajanta and Ellora caves. You can see in Ajanta caves is near Aurangabad district of Maharashtra. Constructed between 2nd century before Christ to 6th century AD, such a long period of time. There are 29 complete caves, one incomplete cave. There are 4 chaityas and rest are viharas. Religion is entirely Buddhism, and patronage was first of all it was given by Satavahanas, then Vakatakas, and then Chalukyas. Okay. So early caves are from Hinayana phase, the 2nd to 1st century BC, and then Mahayana phase can be seen. Major attraction are paintings, architecture, and sculpture. Now we will see Ellora caves. So it is northwest of Aurangabad district of Maharashtra and constructed much later, 6th century AD to 10th century AD. It has 100 caves with 34 open for public. Caves are dedicated to Hinduism, are more followed by सबसे ज़्यादा Hinduism की cave है, then Buddhist cave है. Cave 10 is the only chaitya, while rest are viharas. There is only one chaitya. Religion Hinduism, Buddhism, Jainism तीनों मिल जाएंगे. Patronage Rashtrakuta, Kalachuri, Chalukyas and the Yadavas. So first phase 550 to 600 there is a Hindu phase, then Buddhist phase can be seen 600 to 730, and then 730 to 950 Hindu and Jain phase. Kailasnath temple at Ellora is the main focus. The Chinese Buddhist traveler Fahian, who visited India during the reign of Chandragupta II and Hyun-San, came during the reign of Emperor Harshvardhan, mentions in their travel accounts about the Ajanta caves. Okay, he mentions about Ajanta caves. So the history of Ajanta caves can be of even like it can be even of before the historiography tells. If there is a C14 carbon dating which is being studied, but most of the time the carbon dating of rocks are like of much before, and it is natural. But you need to remember that Fahian who came in 337 AD to 422 AD, and Hyun-Sang both mention about the Ajanta caves. The most remarkable of the Ellora cave temple is Kailasnath temple. It features the large single monolithic rock excavation in the world. It is named for the mountain in the Kailas range of Himalayan where the Hindu god Shiva resides. Okay. There is Elephanta caves. Okay. It is on Gharapuri island. Time of development है इसका around 8th century AD and almost similar to Ellora caves, लगभग एक ही है. Initially it was intended to be a Buddhist site, but बाद में it became like Saivite faith eventually took over. ठीक है. There is a collection of 5 Hindu caves. They are primarily associated with Saivite, and then a pair of Buddhist cave can be also seen. Then in between the 14th and 17th centuries, when Portuguese began to ply the Arabian Sea and use the cave as base, the cave suffered extensive damage. इसलिए damaged है काफी. Some more important caves: Udaygiri and Khandagiri caves. Here you will find Rani Gumfa, built by King Kharvela. King Kharvela was related to Jainism, famous for Hathi Gumfa inscription. They may ask you, Hathi Gumfa inscription is related to which religion? Jainism. Udaygiri and Khandagiri caves. Barabar and Nagarjuni caves, they are Mauryan caves, and Mauryan caves are famous for highly polished finishing. Then there is a Bagh caves. It is entirely Buddhist caves. Stupas, तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ ऊपर छतरी होती है. There are torans. This is like very important for mains. थोड़ा सा ऐसा देख लो. Mains में you can draw this.
सांची स्तूपा. So who built it? First of all, it is a UNESCO World Heritage Site. And who built it? Built by Ashoka. ठीक है. They contain images of Sala Bhanjika, lady holding the branch of tree. Stories from Jataka tales are depicted here. The hemispherical dome of stupa is called as Anda. It contains the relics of Buddha. Buddha के relics रहते हैं इसमें. The original brick dome was expanded into double its size during the reign of Sunga dynasty. Sunga dynasty में इसको expansion हुआ. ठीक है, with stone slabs covering the original dome. Schools of sculpture अगर देखें तो एक गंधारा, एक मथुरा, एक अमरावती है. तो गंधारा as you see it is in northwest, so इसमें हेलेनिस्टिक और ग्रीक का इन्फ्लुएंस होगा. तो उधर से ही देखोगे ना आप, सारे लोग जो आते थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही तो आते थे, तो फॉरनर्स. सो इट विल हैव इन्फ्लुएंस. मथुरा इंडिजीनियस है, अमरावती इंडिजीनियस है. गंधारा में ग्रे सैंडस्टोन्स आर यूज्ड. ठीक है, मथुरा में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन्स आर यूज्ड. अमरावती में देयर आर व्हाइट मार्बल को यूज किया गया. एंड गंधारा में मेनली बुद्धिस्ट इमेजेस, बट मथुरा में तो तीनों है. एंड अमरावती अगेन मेनली बुद्धिज्म. Gandhara was patronized by Kushana and Mathura was also patronized by Kushana. However, the Amravati was patronized by Satavahanas. Who? Satavahanas. ठीक है. उसके बाद गंधारा में स्पिरिचुअल स्टेट में बुद्धा को दिखाया गया. एंड देयर इज अ वेवी हेयर. मथुरा में ही इज डिलाइटेड एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल लुक. अमरावती में स्टोरीज ऑफ जातका टेल्स जो है, the 500 lives of बुद्धा, उन पे जो स्टोरीज हैं वो डिपिक्ट की गई हैं. अब ये है कि इसमें बियर्ड है, इसमें मस्टैच है, इसमें लीन बॉडी है, इतना नहीं पूछता है. कम टू दी इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या हुआ, इंडियन आर्किटेक्चर में पहले ये लिंटल होती थी. ये आज आपने देखा हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिखारा से डोम आ गया. मीनार पहले इसमें होती नहीं थी. मीनारेट्स इज अ इस्लामिक फीचर. स्टोन्स पहले यूज किया जाता था, अब इधर लाइम मोटार सब यूज होने लग गया. ब्रिक लाइम मोटार सब होता था. आर्कुएट स्टाइल होते हैं, आर्चेज होते हैं इसमें. मुस्लिम्स अंडर रिलीजियस इंजेक्शन, उसमें क्या होता है कि देखो इस्लाम में मेकिंग ह्यूमन फिगराइंस इज नॉट अलाउड. सो अगर आप बाहर देखोगे तो देयर विल बी सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सम फ्लोरल पैटर्न, समथिंग विल बी engraved, कुछ लिखा होगा उसमें. देयर विल बी पित्रे दूरा, engraved stones जो यूज किए जाएंगे. तो इसमें आप फिगर्स नहीं देखोगे, ह्यूमन फिगर्स को. ठीक है. एंड यू विल सी ऑर्नामेंट्स काफी यूज किया जाए. अरबेस्क्यू स्टाइल मोटिव्स दिखेंगे आपको. पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सर्कल, ऐसे बनी चीजें आपको दिखेंगी. गार्डन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. चार बाग स्टाइल आपने देखा होगा. ताजमहल इफ यू विल गो, you will see Charbagh style. If you will go to Humayun Tomb, you will see Charbagh style. So कुछ नहीं है, there is a garden and फोर तरफ से ना एक वो एक छोटी छोटी सी वो पानी की, there will be a type of small canal. ठीक है, वो बीच में से जा रही है, इसको चारबाग स्टाइल बोलते हैं. So इसमें भी there are different सब डिवीजन. इंपीरियल स्टाइल है. So it is an early style जो शुरू में आया था, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ही कन्वर्ट कर दिया था मॉस्क्स में, और the ruins of Hindu temples पे. So even if you will go to Qutub Minar, you will see the lots of sculptures and all, and it is written there कि कितना जैन टेम्पल और कितना उस पे ये बना हुआ है कुतुब मीनार. So it is part of imperial style. The palaces were elaborately decorated and embellished with arch और dome बनाए जाते थे. Floral pattern and Hindu motifs भी widely used थे. Then comes the provincial style. तो इसमें जौनपुर वगैरह जो है ना, दे क्रिएटेड बिल्डिंग विद लोकली अवेलेबल मटेरियल. उसके अनुसार, लोकल के अनुसार ढल गए प्रोविंशियल स्टाइल में. लेकिन इसमें फिर टिपिकल मुस्लिम फीचर्स जैसे डोम्स हैं, आर्चेस हैं, मिनारेट्स हैं, मेहराब्स हैं, दे ऑल वर देयर. दे कंस्ट्रक्टेड ऑन द ruins, सिंपली हिंदू जैन. वो स्टैंड अलोन शुरू से बनना, दैट स्टार्टेड इन ड्यूरिंग द मुगल एरा. Under the patronage of Shahjahan, it reached its zenith. Persian style, Turkish influence सब देखने को मिला. Evolution अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, इससे शुरू हो गया सब. डॉम्स, आर्चेस, मिनारेट सब टर्किश रूलर्स आए, उनका भी आपको देखने को मिलेगा. The earliest building of this period is कुवतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में. ठीक है, एंड कुतुब मीनार तो आपने देखा ही है. There is a 5 floors, एंड ऊपर वाले जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबने बनाया, फिर इल्तुतमिश ने कुछ बनाया है. 5th वाला जो वो फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर किया था. ठीक है. रीजनल किंगडम्स अगर हम देखें तो
आपको देखने को मिलेगा इन द बंगाल, इन गुजरात, इन डेक्कन। सो जामा मस्जिद, सदी सैयद मॉस्क अहमदाबाद, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इन मांडू द जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, these are discussed in NCERT, that's why I have written here. Everything has a purpose to write in this compilation. The Jama Masjid at Gulbarga, the Madrasa of Mahmud Gawan at Bidar, ये हमने बात की थी महमूद गबन की while we were reading the history, isn't it? Medieval history. Ibrahim Raza, Gol Gumbaz at Bizapur, all are part of this. Gol Gumbaz is the largest dome in the world. All these buildings vary in design and style from the building of North India. अब देखो North India से गोल गुम्बद अलग है. In Jaunpur, the Atala Mosque built by the Sarki rulers, उनमें gigantic screen बनाई गई थी, ठीक है. और अगर होशंग शाह का there is a tomb at Malwa is made entirely of marble. अब UPSC has asked ना कि ये मार्बल से बना था नहीं बना था, so they have gone to this. अब याद हो गया तो ठीक है, वरना वहाँ लॉजिक लगाएंगे, डरना है नहीं, जो होगा देन एंड देयर देखा जाता है, ठीक है. बहमनी सुल्तान बोरोड फ्रॉम द स्टाइल्स ऑफ पर्शिया, सभी बोरो कर रहे हैं. एंड द जामा मस्जिद गुलबर्गा इज क्वाइट वेल नोन. जामा इज अ जामा हासिल, आपने सुना होगा, दिस इज अ कॉमन टर्म इन उर्दू. दिस इज द गोल गुंबज. मुगल्स पे आते हैं, ठीक है. अब द जेनिथ ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इसी में हुआ. हुमायूं टॉम एट दिल्ली, रेड स्टोन वाज यूज्ड in the building. Akbar built forts at Agra and Fatehpur Sikri was built. और उस टाइम पे the frozen moment in Indian history बोलते हैं फतेहपुर सिकरी को, because he brought lot many things like छतरीज, जालीज from Rajputana style as well. So it was a confluence of different architecture, that is why it is called as frozen moment in Indian history. So ये चीज है. The tomb of Salim Chishti, पैलेस ऑफ जोधाबाई, इबादत खाना, बिरबल्स हाउस, ये सब आपको फतेहपुर सिकरी में मिलेंगे. इनमें सिंथेसिस मिलेगा आपको. During the reign of Jahangir, Akbar's mausoleum was constructed at सिकंदरा में मिलता है in Agra. He built the beautiful tomb of इत्माद-उद-दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताज भी बोला जाता है, which is built entirely of marble and it is in चारबाग style and बिल्कुल थोड़ा रिजेंबल करता है इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है. तो he was I guess he was the father-in-law of Jahangir, ठीक है. And he was a noble, he was very powerful, बहुत चलती थी उनकी. शाहजहां ग्रेटेस्ट बिल्डर, हमने पहले भी बात की है. पित्रेदूरा, जो बिल्डिंग्स में वो इनले करके स्टोन्स कलरफुल, उसको पित्रेदूरा बोला जाता है. इट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, दीस आर ऑल बिल्ट बाय शाहजहां. द ताजमहल, द टॉम्ब ऑफ शाहजहां's वाइफ, इज बिल्ट इन मार्बल एंड रिफ्लेक्ट्स ऑल द फीचर्स दैट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. सब कुछ देखने को मिल जाता है. इट हैज अ सेंट्रल डोम, 4 एलिगेंट मिनारेट्स, गेटवे, इनले वर्क्स, गार्डन सराउंडिंग द मेन बिल्डिंग. 22.5 डिग्री पर मिनारेट्स ऐसे बनाई गई है कि जैसे अगर इफ अर्थक्वेक आल्सो कम्स इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द सेंट्रल डोम, इधर उधर गिर जाएंगे. सो दिस इज द स्केल ऑफ आर्किटेक्चर. इवन द व्हेन यू विल एंटर देयर इज अ बिग गेटवे and in that you will see the different circle kind of thing on that building that depicts the how many years Taj Mahal took for the construction. ठीक है, काफी है. ये देखिए, ये है अपना हुमायूं टॉम. ये देखो चारबाग स्टाइल, यही बता रहा था मैं. देखिए नहीं, ये छोटे छोटे कैनाल जा रहा है, ये देखो बन रहा है, बिल्कुल बीच में पार्क है. ये पित्रेदूरा होता है. दिस इज पित्रेदूरा. हिमालय में देखें तो हिमालयन टेम्पल आर्किटेक्चर इज कन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल स्टाइल. कश्मीर, प्रॉक्सिमिटी टू गंधारा, तक्षशिला, पेशावर, तो सब इन्फ्लुएंस यहाँ पे यू विल सी. देन स्टाइल बिगेन टू मिक्स विद सारनाथ, मथुरा, गुजरात एंड बंगाल स्टाइल्स में भी देखा गया. इन सेवरल टेम्पल्स गर्भगृह एंड शिखारा आर मेड इन रेखा प्रसाद स्टाइल. ठीक है, वाटर टैंक भी दिख जाता है. स्कल्पचर्स एट चंबा शो एन अमलगमेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन. और कुमाऊं में क्लासिक एग्जांपल ऑफ नगरा आर्किटेक्चर. तो एक मिक्स है, कुछ ऐसा आपको एक ही तरह का कुछ देखने को नहीं मिलेगा. 1 सेकंड. देन देयर इज इंडो सारासैनिक आर्किटेक्चर. सारासैनिक मतलब विक्टोरियन से जो मिक्स हो गया. तो उसमें देखोगे ना, देयर इज लॉन्ग विंडोज, डोम्स वगैरह सब आपको दिखते होंगे. चेन्नई म्यूजियम वगैरह अगर आप जाओगे, एग्मोर रेलवे स्टेशन है चेन्नई में, यू विल सी दीज थिंग्स. छज्जाज होते थे बड़े बड़े, तो सारी चीजें वो मिक्स हो गई. देखो छज्जा दिख रहा है, ये छज्जा. वॉल्टेड रूफ है, ठीक है, छतरीज दिखेंगी,
मिनारेट्स होंगे, पेविलियन, सो सब कुछ कन्फ्लुएंस हो गया था। अब आ जाओ यार बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म में देखो बेसिक्स क्या है। 4 नोबल ट्रूथ्स है, 8 फोल्ड पाथ है। 4 नोबल ट्रूथ में आपको देखना है दैट द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, एंड ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को खत्म कैसे करते हैं, एंड ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, क्या पाथ चूज करना है। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ है जिसमें उन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। एंड कर्मा में दे बिलीव, दिस इज द आइडिया दैट एवरी एक्शन हैज अ कंसिक्वेंस, जो भी आप कर्म करो उसका एक कंसिक्वेंस तो होगा, एंड दैट दीज कंसिक्वेंसेस डिटरमाइन आवर फ्यूचर एक्सपीरियंस, और फ्यूचर में क्या होगा कर्मा डिसाइड करेगा। Reincarnation, this is the belief that after we die our consciousness is reborn into another form. Reincarnation में भी their belief is, ठीक है, this is a probable statement. No self, this is idea that there is no permanent unchanging self or soul that exists within us. Soul में belief नहीं है, but consciousness में है। ये consciousness है जो rebirth होगा, ठीक है, बट ये नहीं बोल रहे कि अनचेंजिंग सेल्फ या सोल है, ठीक है। कॉन्शियसनेस और सोल थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में वर्ड प्ले लगता है बट है डिफरेंस। इम्परमानेंस, मतलब इम्परमानेंस का क्या मतलब है, ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर, ये तो है ही वर्ल्ड में। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है बुद्धिज्म का। की टर्म अगर देखो तो बुद्धा वो है जो इनलाइटेंड है। लुम्बिनी में उनका बॉर्न हुए थे, और कपिलवस्तु, यशोधरा हिज वाइफ, एंड कजिंगराम देवदत्त था, ये सब नहीं पूछते, ठीक है। कंथका उनके हॉर्स का नाम था। अलारा कलामा टीचर थे, दिस आई हैड आस्क्ड आल्सो इन एमसीक्यू, ठीक है। सुजाता बॉट हिम अ बाउल ऑफ राइस बॉइल्ड इन मिल्क, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मारा डेविल को बोलते हैं बुद्धिज्म में। भिक्षुज बैगर्स, सन का नाम राहुल था, ठीक है, राहुल मतलब कांटा होता है, ठीक है। बुद्धा अवर्टेड अ वॉर बिटवीन साक्यास एंड कोलियास, 2 वॉर हो रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसको 2 किंगडम के बीच में, दैट बुद्धा ने बचाया। डाइड इन कुशीनगरा, ठीक है। हिज एसेस ऑल डिवाइडेड टू किंग अजातशत्रु, बहुत सारे रिलिक्स बनाए थे। काउंसिल्स अगर हम देखें थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, देखो हाँ, फर्स्ट काउंसिल हुआ था 487 बिफोर सेंचुरी में इन राजगृह। उपाली और आनंदा दोनों इसमें थे, उपाली और आनंदा। आनंदा वाज इज वन ऑफ द फेमस डिसाइपल बुद्धा। ओकेजन डेथ ऑफ बुद्धा हुआ था। विनय पिटका रूल्स एंड रेगुलेशन इन संघा, ये रखा गया। एंड सुत्ता पिटका बुद्धास टीचिंग, ये दोनों विनय और सुत्ता। अभिधम्मा लिखा होगा मत रखना, ठीक है, अभिधम्मा लिटाएगा। सेकेंड वैशाली मो 387 बिफोर सेंचुरी में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग किया गया। वैशाली मॉन्क्स टेकिंग लिबर्टी विद विनय पिटका रूल्स। अब यहाँ पे दिक्कत होती है कि कुछ लोग दे वांट टू चेंज दी विनय पिटका रूल्स, एंड यहाँ से देयर विल बी लाइक एक डिवीजन हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ओल्ड एज ट्रेडिशन जो मानने लगे स्थाविरवादिन्स हो गए, हिनायाना। एंड लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द रूल्स, महासंघिका, वो लेटर होके वो महायाना हो जाता है। तो स्थाविरवादिन्स जो है, अगर बोला जाएगा कि इट इज पार्ट ऑफ महासंघिका, नो, दे अपोज्ड महासंघिका, ओके। फिर थर्ड होता है 247 बिफोर सेंचुरी, ठीक है, पाटलिपुत्रा में, अशोका में। जो सेकंड है ना, ये काल अशोका के टाइम में हुआ, ठीक है। पहला अजातशत्रु एंड सेकंड काल अशोका एंड थर्ड अशोका, ठीक है। प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगालीपुत्र तीसा, he was the one who converted Ashoka to Buddhism, ठीक है। Added मोगालीपुत्र तीसा's कथावथु, discussion of dissenting views to थेरावादी बुद्धिज्म, पिटका। थेरावादी बुद्धिज्म पे एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। सेंड्स मिशनरीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। मॉन्क महिंदा फाउंड थेरावादी स्कूल इन श्रीलंका, ठीक है। देन कम्स महिंद्रा एंड संघमित्रा, एक डॉटर एंड सन ऑफ अशोका, ठीक है। फोर्थ 78 AD हो गया, ये कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में। एंड इट वाज अंडर द पैटर्नेज ऑफ कुशाना, प्रिसाइडेड ओवर बाय वासुमित्रा, एंड उसके वाइस प्रेसिडेंट थे अशोक घोष। तो यहाँ से सर्वस्तिवदा जो है, अभिधर्मा टेक्स्ट, अभिधम्मा, वो आना शुरू हुआ। और महायाना यहीं से बिल्ट हुआ। महायाना कहाँ से बिल्ट हुआ? यहीं से बिल्ट हुआ। स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, पाली का यूज होता था, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ एल्डर जो होते हैं उसको थेरागाथा बोलते हैं।
एंड थेरी गाती बाय नन्स। 3 मेन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया त्रिपिटका। सुत्त पिटका, बुद्धा के सेरेमनीज, कोर टीचिंग्स इज रिटन हियर, डिवाइडेड इनटू 5 कॉल्ड निकायास और अगमास। जो भी निकाय निकाया करके वर्ड्स दे विल बी यूज्ड ना, दे विल बी ऑफ बुद्धिज्म। देन विनय पिटका, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मोनेस्ट्री में रहना तो कैसे रहना। देन अभिधम्म पिटका, फिलोसॉफिकल पार्ट, हायर एंड एडवांस्ड फॉर्मुलेशन, seeks to avoid some of the मतलब कन्वेंशनल लैंग्वेज है उसको थोड़ा और लेके जाते हैं, मेटाफिजिकल बातें होती है, मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस की बात होती है, साइको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज यूज हुई है। सो इट्स वन ऑफ द हायर टेक्स्ट। देन सुत्त पिटका, ओवर 10,000 सुत्तास उसमें लिखे हुए हैं, एंड हिज क्लोज कंपेनियंस। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पैटर्नेज ऑफ किंग अजातशत्रु विद द मंक महाकश्यपा ने प्रिसाइड किया था राजगीर में, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस। तो सुत्त पिटका में दिग्घ निकाया है, फिर मध्यमा निकाया है, समुत्य निकाया है, अंगुत्तरा निकाया है, खुदक्का निकाया है, सब है, बहुत सारे निकाय। सुत्त पिटका में ये आपने देख ही लिया, रिपीट हो गया। अभिधम्म पिटका, डिल्स विद फिलॉसफी डॉक्ट्रिन। इसमें कौन कौन से पार्ट है? धम्म संगिनी, विभंगा, धातु कथा, पागलपन्नाती, कथावत्तु, यमका, पत्थाना। ठीक है, अब कोई भी इसको याद कर नहीं सकता, ऐसे देख लो बस। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म हैज सेवरल डिफरेंट ब्रांचेस एंड सेक्ट्स। ठीक है, थेरावादी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रांच है, इन कोर टीचिंग उसी पे बिलीव किया। महायाना, जिसमें डिफिकेशन ऑफ बुद्धा हो गया, बुद्धा को एज अ गॉड हो गया, रिचुअल्स आ गए, और हेयर बोधिसत्व कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, वज्रयाना बुद्धिज्म, थोड़ा तांत्रिसिज्म इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैन बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म प्रैक्टिस इन जापान, और जो उधर हो गया इस पार्ट में हो गया वो हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म ओनली। प्योर लैंड बुद्धिज्म प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन ईस्ट एशिया। ठीक है, these are just few, there are so many of these sects. हिनायाना महायाना में डिफरेंस क्या है? firm to the letter of Buddha's teachings, what Buddha said उसे लेटर इन स्पिरिट में लेना। ठीक है, तो दोनों में लेना, इधर केवल स्पिरिट है महायाना में। डेवलप्ड विद द संघा सेंटर विद इंडिविजुअल। ठीक है, मेनली पाली, सूत्राज इन संस्कृत एज वेल, यू विल सी इन महायाना। साल्वेशन बाय वर्क, साल्वेशन बाय फेथ, इधर वर्क था, इधर फेथ आ गया। सेंटर्ड अराउंड एक्ट्स ऑफ बुद्धा, अराउंड सिंबोलिज्म ऑफ हिज लाइफ। राइचियस सेक्शन पे था, लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीफ था। अबव लॉ ऑफ कर्मा वाज लॉ ऑफ करुणा, करुणा मतलब एम्पैथी। So law of karuna was something which was emphasized by Mahayana. Then comes ideal जो होते थे उनको अरहत बोला जाता था, इधर कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व आ गया। बुद्धिज्म के सबसेक्ट्स देखें तो बुद्धिस्ट संघा सेकंड काउंसिल में, स्थाविरा एंड महासंघिका, दो डिवीजन हो गए थे। अब स्थाविरावादीन में आ गए समत्यास, वत्सीपुत्र्यास, सर्वस्तिवादीन या भी धर्मा भी बोलते हैं, और उससे फिर सौतांत्रिका आ जाए। सौतांत्रिका और आस्ट, तो स्थाविरा है, स्थाविरा से समित्याज आए, वत्सीपुत्र्याज आए, सर्वस्तिवादीन आए, या भी धर्मा, और उधर सौतांत्रिका आया। महासंघिका से लोकत्तिरवादी, दिस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। एक व्यय वारिकास, ककुड़िकास, ककुत्तिकास, ककुत्तिकास। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ समवन कैन रिमेम्बर, तुक्के में सही हुआ तो हुआ। बुद्धिज्म में दे ट्राई टू मेक अस डू पीएचडी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि आप याद आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, इससे डीप नहीं जा सकता कोई। ठीक है, 4th सेंचुरी में फिर से अब देखोगे हिनायाना एंड महायाना, और इसमें क्या है, हिनायाना में धम्मकाया, तमरस्तिया एंड विपासना ट्रेडिशन। महायाना में मध्यमिका स्कूल, शून्यवाद, नागार्जुना, योगाचारा and Vajrayana. These are all part of Mahayana. So Yogacara is important. And in Hinayana you will see Dhammakaya, Tamarasthiya and Vipassana. फिर इसको फिर और तांत्रिक को फिर ये शक्यापा, कगयापा, गेलुअप्पा, बहुत सारी चीजें। हिनायाना में फिर देखो स्थाविरवादी, सबने देखा होगा डॉक्ट्राइन्स ऑफ एल्डर, प्रपोज बुद्धा एज गॉड ऑफ गॉड, सुपर ह्यूमन फिलोसफी है स्थाविरवादी में। सर्वस्तिवादीन्स में हेल्थ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड इट, आल्सो कॉल्ड एज हेतुवादीन्स। सौतांत्रिका इज ऑफशूट ऑफ सर्वस्तिवादीन्स, which is more critical in nature. समित्या rejected the doctrine of soullessness. तो हमने यहाँ पे देखा था समित्यास
वत्सीपुत्रयाज, सर्वस्तिवादी, उसका एक निकला सौतांत्रिका। ये हिनायाना का फर्दर सब डिवीजन हुआ। महायाना डेवलप 2 स्कूल, मध्यमिका एंड योगाचार्य, ठीक है। मध्यमिका माइंड ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग रियलिज्म ऑफ हिनायाना एंड आइडियलिज्म ऑफ योगाचार्य कॉल्ड क्वालिफाइड रियलिज्म। योगाचार्य आइडियलिज्म, वर्ल्ड वाज बिल्ट बाय कॉन्शियसनेस एंड हैड नो मोर रियलिटी देन अ ड्रीम। कॉन्शियसनेस से बना, कोई और रियलिटी है नहीं योगाचार्य में। डायमंड व्हीकल, आइडियाज ऑफ मैजिकल मिस्टिसिज्म, ठीक है। तंत्रा जो आता है इसी में आता है, जिसको डायमंड व्हीकल बोलते हैं। सेक्सुअल राइट्स टुक प्लेस, बहुत सारी चीजें थी इसमें। बोधिसत्व is a being who is dedicated to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, all the creatures. Bodhi means enlightenment and sattva means beings or spirit. ठीक है। 8 prominent bodhisattva कौन है? फर्स्ट है अवलोकितेश्वरा, जो कंपैशन बुद्धा के शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है। फिर मंजूश्री, बुद्धा का विजडम जो है मंजूश्री करता है, ठीक है, करते हैं। और फिर समंतभद्रा, बुद्धास एस्पिरेशंस, यूनिवर्सल वर्दी, ठीक है। देन क्षितिगर्भा, बुद्धास मेरिट, ठीक है। ईस्ट एशिया में क्षितिगर्भा का ज्यादा होता है, मींस अर्थ बॉन्ड, ठीक है। ही इज सेवर्ड एज गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन एंड पैट्रन डिटी ऑफ डिसीज्ड चिल्ड्रन। ही कैरीज अ स्टाफ। मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा। वज्रपाणी, बुद्धास पावर, वज्र पानी। One of the 3 protective deities around Buddha, others are Manjushri and Avalokiteshwar. ठीक है। Then comes the Sarvanivarana या निष्कंभहीन, ये बुद्धा's qualities, ये थोड़ा less important है। Then Akash Garbha, as the name suggests, is a boundless as space. You are the twin brother of क्षितिगर्भा. He manifests ब्लेसिंग्स, बुद्धा की ब्लेसिंग्स हुई आकाश गर्भा, ठीक है। बुद्धिज्म से एंड करेंगे, एक और हम पार्ट बनाएंगे। आई थॉट टू मेक इट बट दिस इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज ऑफ द PhD दैट वी हैव टू डू इन बुद्धिज्म। इसकी वजह से प्रत्येका बुद्धास क्या, स्थाविरवादीज काउंटेड नो लेस देन 25 बुद्धास एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रत्येका बुद्धास। दे आर ऑफन मेंशन्ड इन जातका स्टोरी, ठीक है। एक बार आपको मैं ये फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, बुद्धि संघ है, सेकंड काउंसिल हुआ, स्थाविरा बने और महासंघिका बने। स्थाविरा में समित्याज आए, वत्सीपुत्रयाज आए, सर्वस्तिवादी आए, उससे सौतांत्रिका निकला। महासंघिका से लोकोत्तरवादी, एकव्या वहारिकास एंड ककुतिकास। फिर 4th सेंचुरी में हिनायाना, हिनायाना से बना धम्मकाया, तवरस्त्या श्रीलंका में मिलता, धम्मकाया थाईलैंड में, एंड विपासना ट्रेडिशन म्यांमार में। महायाना में मध्यमिका स्कूल है, योगाचारा स्कूल है एंड वज्रयाना स्कूल है। तो ये है आपका पूरा बुद्धिज्म, इसकी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जैनिज्म थोड़ा देखेंगे, ठीक है। लिटरेचर है, दिस इज नॉट दैट बिग। जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, थोड़ा सा भक्तिज्म टच करेंगे। देन वी विल सी दी सेंट्स, भक्ति सेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर थोड़ा सा सूफिज्म देखेंगे, अभी बहुत कुछ है, ठीक है। सूफिज्म थोड़ा देख के फिर ये डांस वांस थोड़ा सा हो सकता है 2 पार्ट बने, ठीक है, 2 ही बना दूंगा। जो लास्ट पार्ट होगा उसमें पपेट्री वगैरह ये सारी चीजें जो है, और ये तो रिवीजन के लिए डाला तो ये डिस्कस होगा नहीं। सो सम 20 मिनट्स के 2 वीडियो में वी विल फिनिश दी आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट विशेस।